Good morning, students. My voice is clear. Okay, thanks. So let's start the session. Sorry. In last lecture, we have discussed the DFS, depth first search, and minimum spanning tree. In that first method, that's the Prim's algorithm we have discussed. What is the Prim's method? Starting node, and consider the adjacent node from that, and out of that edges, just select the minimum one. Now we have two nodes A and C. So A and C, number of edges remaining, that's a 7, 4, 10. Out of these three, choose the minimum, and so on. Same process for all the nodes. So our main target for the finding the means MST, that is cover all the nodes without loop and minimum distance. These 3 points we have to take for the finding the MST. Now next method, that's Kruskal. But before that, for the revision, I want to give one more example for the Prim's algorithm. So let's take the example. Anyway, I want to give the example from the book. Okay, so all of you students, please try to solve this example. Question number 18. Consider the graph given below. Find the minimum spanning tree of this graph using Prim's algorithm. Okay, so all of you try to solve this example number 18. And once you complete, write down the total cost, or it may be number of edges, or which are the edges.
So all of you are trying to solve this example. Find the MST using Prim's algorithm. हाँ, starting node यहाँ पे अगर कुछ दिया नहीं है तो you can start from the alphabetical order. That's a capital A because they did not mention starting point. Sorry. Okay, so Parth, Mihir, Mike. Your answer is 11. Okay, maybe correct. I don't know. So wait for others' answer. Okay, so I think okay. Sorry guys, I was disconnected.
And again, I want to share my screen. Okay, my screen is visible. Now, so most of students are giving the answer that's 11, right? So let's try to make the answer. Okay, path 10. Okay, 14. Any other answer? So your answer may be 10, 11, or 14. 12. Okay. Okay, any other answer? Sorry. Okay, so let's make the answer. So I want to write the answer in Paint. A, B, C, D, E, and F. Okay. So first of all, I'm just simply draw the number of nodes. And F will be here. Yeah. So now let's make the number of edges or connect all the nodes. So first of all, starting node, as I said that already told that the starting node A, that's alphabetical order. So A has two adjacents and both have the edges same edge. So you can take any one. For example, this one. You can also take A or C, means A to C. Clear? Now we have two nodes A and B in our answer. So number of possible edges is this one, and this one. Wait here 2, 3, and 2. Clear? 2, 3, 2. तो minimum अब मैं इस बार ये ले रहा हूँ 2. We can also to take this one B to E. ठीक है. चलो अब possible edges तो ये बीच वाली edge तो आएगी नहीं. ये तो possible नहीं है because it's a loop. So just simply remove. तो ये भी possible नहीं है. Now possible edges this one 5, 3, and okay this one also 6, and here 2. So 2, 6, 5, 3. उसमें से minimum 2. So now let's make this edge 2. ठीक है. अब possible edges तो एक यहाँ पे है 6, एक यहाँ पे है 5, एक यहाँ पे 3, एंड अब एक ये भी ऐड हो सकती है तो ये है 4. कितनी एजेस अभी पॉसिबल है अपने पास? 3, 4, 5, 6. सो मिनिमम दैट्स अ 3. डन. अब एफ नोड ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ ये वाली एज 1, और वही मिनिमम है तो सिंपली ऐड. Then stop. We cover all the nodes and without loop, or you can set the number of nodes, that's 6. So number of edges should be maximum 5. So now let's simply make the summation.
That is your answer. Okay, but before that, I want to extra lines should be removed here, so there is no confusion. Now make the total. This is your answer. So final answer is 2, 2, 2, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 1, 10. So 10 is the final answer using the Prim's algorithm. Any, okay, yeah. It is allowed to grow at different sides at one time. Hmm. No, actually at a time at least any one edge you can add at a time. ठीक है? Placed two step to B to E. Okay. B to E, and she's allowed to go to C side after B. Yeah. uh, See, जब वेट सेम हो तो यू कैन टेक एनी एज. फॉर एग्जाम्पल जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे सर स्टेप बी टू ई. ओके, बी टू ई एक्चुअली मैंने बाद में ऐड किया था. सी पहले से मैं बता रहा हूँ. पॉसिबल देन कंट्रोल चेट इट वर्क. नो. देखो सबसे पहले मैंने, चलो फिर से बताता हूँ और अब मुझे तो बताना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है. हम्म, ठीक है, मुझे ये सब रिमूव ही करना होगा. Okay, so let's start again. Starting from the first. सी, स्टार्टिंग नोड है तो ए के अंदर दो एज है, दोनों में वेट है कोस्ट है 2 2. सो यू कैन टेक एनी वन एज जो आप बोलो. फॉर एग्जांपल ए टू बी और इनमें भी ए टू सी. ठीक है, चलो लास्ट टाइम मैंने ए टू बी लिया था, अब दिस टाइम मैं ले रहा हूँ ए टू सी. डन. तो अब मेरे पास आंसर में दो नोड्स है ए एंड सी. तो उसकी जो पॉसिबल एजेस है वो मैं जरा यहाँ पे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. एक ये दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस. अभी जो चार पॉसिबल कनेक्टेड एज है वो चारों का वेट देखो आप. यहाँ पे 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3, 5 एंड 3. ठीक है, अब इसमें से मिनिमम तो ऑब्वियसली यू टू शुड मींस टेक दिस वन 2. सो जस्ट मेक दैट लाइन. दिस इज लाइन. ठीक है, अब मेरे पास ये तीन एजेस तो है ही, 3 5 3. अब मैं इसकी पेजेस ऐड कर सकता हूँ. तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये वाली एज जो वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वाला, वो था सेम, वो एक ही एज है. ठीक है, अब इसमें पॉसिबल वेट्स लिखो तो क्या आता है 2 6 3. तो यहाँ पे पॉसिबल वेट है 2 6 और ये 3, तो वही है जो ये सेम वाला, सेम एज. ठीक है, तो अब मेरे पास एज देखो तो ये 1 2 3 4 5. ठीक है, अब उसमें मिनिमम 2, तो आप ये कवर कर ही लोगे ये वाले एज. सॉरी, दिस वन.
हाँ, एनी डाउट नाउ, एनी क्वेरी? हाँ, एक मैं मतलब see, यहाँ पे सेम वेट ज्यादा है, मतलब 2 to 2, 3 3, तो देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आंसर। बट यहाँ पे वेट आई थिंक कॉस्ट जो है वो 10 आएगा मिनिमम कॉस्ट। यस पार्थ, इज देयर एनी डाउट महक और क्लियर? एनी क्वेरी? ओके, सो एनी अदर स्टूडेंट, एनी डाउट? नो। सो लेट्स स्टार्ट द नाउ नेक्स्ट वन, क्रुस्कल मेथड। ठीक है, अब ये जो मेथड थी दैट्स अ प्रिम, कि हम एक एक नोड उसमें ऐड करते जा रहे थे और उसकी नंबर ऑफ एजेस कंपेयर करते थे एंड सिलेक्ट द मिनिमम। दैट्स अ प्रिम। नाउ क्रुस्कल, तो क्रुस्कल में क्या है देखो, इट्स वेरी इजी कंपेयर टू प्रिम। क्रुस्कल में क्या है, to create a forest in such a way that each graph is separate tree and create a priority queue that contains all the edge of the graph, means सारी एजेस एक आपको एक क्यू में ऐड कर देना है, और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक आपको कंटिन्यू करना है। अब क्यू में से कौन सी एज प्रायोरिटी वाइज निकालना है, तो भाई जिसका वेट सबसे कम हो वो पहले निकालना है। दैट्स द सेम प्रोसेस। लेट्स सी द एग्जांपल। सी, देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक है कैपिटल एफ, दैट्स नंबर ऑफ नोड्स। अभी सारे नोड्स अलग अलग है, तो मैं पहले पेंट में ड्रॉ करता हूँ, सारे नोड्स बना देता हूँ, उसमें एजिस कनेक्शन करना बाकी है, दैट्स कैपिटल एफ। एम एस टी हमारा आंसर, तो उसमें भी इनिशियल एम टी, दैट्स एम टी करली ब्रैकेट। एंड क्यू, तो क्यू के अंदर सारी एजिस है, ए डी ई एफ सी एफ सारी एजिस। ठीक है, बट ये एजिस उन्होंने एंटर की है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एजिस। तो सिंपल, आपको देखो करना क्या है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पेंट में ही ड्रॉ करता हूँ, देन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने एक नया व्हाइट बोर्ड ले लिया है और नंबर ऑफ नोड है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, सो लेट्स मेक द नोड्स। दिस आर द नोड्स ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे जितनी भी एजेस है आपको उसमें से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सो विच वन इज अ मिनिमम, मुझे ये भी चाहिए होगा, जस्ट वेट मिनट। हाँ, विच वन इज अ मिनिमम, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एजेस है, मतलब उसमें वेट देखो तो 7 8 6 5 4 3 2 5 1, सो वन इज अ मिनिमम। यस, so first of all just simply make the here age, that's a 1। 1 के बाद नेक्स्ट मिनिमम, दैट्स अ 2। सो नेक्स्ट आंसर हियर 2। इसमें बहुत इजी है, आपको कुछ भी नंबर ऑफ नोड्स ऐसा कुछ देखना नहीं है, जस्ट सिंपली स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैंने 1 लिया, देन 2, नाउ 3। बस ऐड करो, तब आपको देखना है कि लूप नहीं होनी चाहिए। अगर लूप नहीं हो रही है तो यू कैन ऐड सिंपली। 3 के बाद 4,
फोर के बाद फाइव, बट फाइव ऐड नहीं करना है, बिकॉज अगर मैं ऐड करूंगा तो वो लूप हो जाएगी। और वैसे भी ये चार नोड्स, पांच नोड देखो कनेक्शन हो चुका है, ए डी सी ई एफ, तो वहां पे अब एक्स्ट्रा एज की जरूरत ही भी नहीं है। और अब अगर बाय मिस्टेक भी ऐड करोगे तो इट्स बिकम द लूप, साइकिल हो जाएगी, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो फाइव नहीं आएगा। वैसे भी फाइव यहाँ पे दोनों फाइव फाइव है, वो भी नहीं आएगा। चलो, देन सिक्स, सिक्स में भी अगर आप गलती से ऐड कर रहे हो ये वाला तो भी लूप हो जाएगी, इसलिए वो भी नहीं। देन सेवन, तो ये आपका आंसर कंप्लीट, सारे नोड्स कवर हो गए विदाउट लूप विथ मिनिमम डिस्टेंस। सो दिस इज द क्रूस्कल एल्गोरिदम। ठीक है, क्या किया स्टार्ट में, सबसे पहले मैंने सारे नोड्स लिख दिए, स्टार्टिंग किया विथ मिनिमम डिस्टेंस, और हर एक एजिस ऐड करता गया। चेक करना है लूप नहीं हो रही है तो यू कैन ऐड, इफ इट इज लूप देन अवॉइड। ठीक है, अब लिखना क्या, देखो उन्होंने लिखा किस तरह से है कि उन्होंने ये तीन वेरिएबल लिया, कैपिटल एफ नंबर ऑफ नोड्स, एमएसटी मतलब आपके आंसर में कौन कौन सी एजिस ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, इनिशियली इट्स एम्प्टी, देन क्यू दैट्स इनिशियली नंबर ऑफ ऑल द एजिस, ऑल द एजिस। अब उसमें से देखो उसने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने ऐड किया एडी, तो देखो यहाँ पे ग्राफ में उसने डार्क लाइन कर दी, और वो एज क्यू में से निकाल के मैंने आंसर एमएसटी में ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स पहले अलग अलग थे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से मैंने एडी दो नोड्स का मैंने कनेक्शन बना दिया। दैट्स व्हाई हियर इन सेम कर्ली ब्रैकेट ग्रुपिंग ए कॉमा डी। आई होप फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। देन देन सेकंड स्टेप, तो देखो सेकंड एज मिनिमम टू वाली मींस ई टू एफ, तो ई टू एफ क्यू में से रिमूव करके एमएसटी में ऐड किया, और वहां पे ग्रुपिंग कर दिया ई एन एफ। दैट्स द सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप, यहाँ पे थ्री ऐड किया, मतलब सी टू ई, तो क्यू में से रिमूव करके एमएसटी में ऐड किया, और सी ई एफ एक ग्रुपिंग बना दिया। अब ये तीनों नोड कनेक्टेड है, सी ई एफ। फोर्थ स्टेप में जिसका वेट फोर है, क्यू में से रिमूव करके एमएसटी में ऐड किया, और वहां पे ग्रुपिंग कर दिया। देखो ये चार पांचों नोड एक साथ आ गए, ए डी सी ई एफ। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप में सेवन किया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एनी क्वेरी, एनी डाउट अप टू दिस वन? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, इसका जो भी टोटल आता है दैट्स योर आंसर मिनिमम कॉस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर, इट्स वेरी इजी क्रूस्कल एल्गोरिदम। लास्ट स्टेप में देखो यहाँ तक था सेकंड लास्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे लास्ट में फोर वाली एज ऐड की। ठीक है, तो ये पांच नोड साथ में ग्रुपिंग में आ गए, ए सी डी ई एफ। ठीक है, और अभी क्यू में लास्ट में मैंने ऐड किया था ई डी ए वाला एच, जिसका वेट फोर है। उसके बाद देखो तो ये सी डी वो पॉसिबल नहीं है, डी एफ वो भी पॉसिबल नहीं है, ए सी वो भी पॉसिबल नहीं है, तीनों एच पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स क्रिएट दी लूप। डायरेक्टली आप ऐड कर रहे हो ए कॉमा बी, तो देखो ए कॉमा बी यहाँ पे आ गया, और वो तीन एच तो निकल गई क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में बी टू सी वो भी पॉसिबल नहीं कि अगर आप ये ऐड कर दोगे तो लूप हो जाएगी। देन क्यू इज एम्प्टी, देन स्टॉप, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका समेशन कर दो, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 प्लस 17, दिस इज योर मिनिमम टोटल कॉस्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन अगेन, यस मैक। सी स्टार्टिंग क्या करना है, सारे नोड यहाँ पे 10 का लिस्ट आउट कर दो, स्टार्टिंग विद द मिनिमम डिस्टेंस, उसमें एज ऐड करते जाना है, एजेस
सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 1 ऐड किया, देन 2, सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, फिर यहाँ पे 5 वाले एजेस भी है, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, बट ये दो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ये ऐड किया तो इट्स क्रिएट द लूप, इसलिए 5 नहीं। 5 के बाद नेक्स्ट आता है 6, बट वो भी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो भी लूप हो जाएगा। उसके बाद ये 7 ऐड किया, देन 8 यहाँ पे है, बट वो भी नहीं है क्योंकि अगर मैं ये ऐड करूंगा तो लूप हो जाएगी। तो दिस इज योर आंसर। हाँ, अब लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए 3 वेरिएबल, कैपिटल एफ, एमएसटी एंड क्यू। एफ क्या है, ऑल द नंबर ऑफ नोड्स, पहले उसने अलग अलग लिखे हुए हैं क्योंकि जब मैंने यहाँ पे पेंट में ड्रॉ किया तो सब अलग अलग थे विदाउट एनी एजेस, जस्ट खाली नंबर ऑफ नोड्स। देन एमएसटी, तो अभी आंसर में भी मैंने कुछ नहीं किया था तो इनिशियली एम्प्टी। और क्यू, क्यू के अंदर सारी एजेस है बट प्रायोरिटी क्यू, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मतलब जिसका वेट कम हो वो पहले लिखना है। देखो यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, ए कोमा डी, देन डायरेक्टली ई कोमा एफ, देन सी कोमा ई, ई कोमा डी, सी कोमा डी, डी कोमा एफ, सिमिलर असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्यू में से एक एक एज रिमूव करते जाना है और ऐड करो आपके आंसर में, एमएसटी में। इफ इट इज लूप देन इग्नोर द एज, दिस इज द सेम। सबसे पहले एक फर्स्ट एज ऐड किया, तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी भाई, कौन सी एज ऐड की है, तो ए टू डी, मतलब ये ए और डी नोड दोनों साथ में आ गए ग्रुपिंग में, तो इसलिए देखो मैंने फर्स्ट कैपिटल एफ के अंदर वो मैंने ग्रुपिंग में लिख दिया, तो मेरा कर्सर मूव कर रहा है। क्यू में से वो निकाल दिया और मैंने आंसर में ऐड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, नेक्स्ट एज कौन सी आ रही है, तो ई कोमा एफ, देखो यहाँ पे ई कोमा एफ था, वो क्यू में से रिमूव किया, एमएसटी में ऐड किया, उन दोनों को ग्रुपिंग किया। नाउ सेम प्रोसेस फॉर ऑल द नोड्स। so clear clear mic, or any other query? Any other students, any query, any doubt? Okay, so let's example, एग्जाम्पल इसमें नहीं है, तो ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ये एग्जाम्पल ट्राई करो, जरूरी नहीं कि जो प्रीम में आंसर आता वही आंसर आए, इट मे बी माइनर वेरिएशन बिकॉज द नंबर ऑफ इज सेम वेट। ठीक है, अब यही एग्जाम्पल क्रूस्कल मेथड से ट्राई करो, 99% आंसर वही आता है बट जरूरी नहीं कि हर बार सेम आंसर। सॉरी। ओके, मतलब सेम आंसर आ रहा है ना, ठीक है। Okay, most of students are giving the answer 10, correct. So again, it's very easy. See, exam में आप step by step लिखोगे, और if it is exam is offline,
इट नॉट डिसाइडेड कि एग्जाम इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, बट अगर ऑफलाइन है तो आप स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है। क्या करोगे, सबसे पहले नोट्स लिख दो। ए, बी, सी, ठीक है। तो इसमें देखो क्रुस्कल में सबसे पहले क्या करना है, जस्ट मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सो स्टार्टिंग वन, सबसे पहले आएगा दिस वन एफ कॉमा डी, और यू कैन राइट हियर वन। अब मिनिमम डिस्टेंस में टू आता है, तो टू वाले एजेस देखो यहाँ पे बहुत सारी एजेस है, ए टू बी, ए टू सी, बी टू ई। तो पहले कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब बाकी की दो देखो, वो भी ले सकते हो, अगर लूप नहीं हो रही तो यू कैन टेक, आपको वही लेना है विथ मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि लूप नहीं हो रही है। देन थ्री, अब थ्री वाली एजेस देखो यहाँ पे दो है, बी टू सी एज वेल एज सी टू एफ। बट अगर मैं ये बी टू सी ले रहा हूँ तो इट्स जस्ट सिंपली क्रिएट द लूप, तो ये तो नहीं ले सकता हूँ, तो ये वाले ऐड कर देते हैं थ्री। तो अब देखो सारे नोड्स कवर हो गए एंड विथ मिनिमम डिस्टेंस, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो आंसर अगेन आई थिंक 2 plus 2 6 plus 4 10, okay, so this is the answer. I think same answer is for the prim as well as this one, but not necessary for every time, huh? जरूरी नहीं कि वो सेम आंसर आए। Okay, and any other example? Okay, इसमें ट्राई करो, what is the answer, but यहाँ पे प्रेम लिखा है, but you have to solve using the Kruskal method, this example। ये एग्जांपल क्रुस्कल से स्टार्ट करना है, एंड क्रुस्कल मेथड में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, द स्टार्टिंग पॉइंट दैट्स द मिनिमम डिस्टेंस। सॉरी। ओके ओम, यस, जस्ट वेट। यस शिफा, डोंट वरी। आप अभी एडमिशन लिया, दैट मींस आई थिंक यू डी टू डी है ना? ठीक है, आप लोगों के लिए देखो, मैंने पहले भी बताया था कि डी टू डी स्टूडेंट्स के लिए ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जो लेक्चर चल रहा है दैट्स 9:30 to 2 o'clock। आफ्टर दैट 2:30 to 4:30 दैट्स योर extra sessions only for the D2D।
और डे टू डेज की बात करूँ तो एक वीक जितना हो चुका है डे टू डेज में। और मतलब डीएस की बात करूँ तो एटलीस्ट अप टू आई थिंक स्टैक तक हो चुका है। ठीक है, हमने पहले से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन चैप्टर, तो वहां से स्टार्ट किया था, उसमें स्टैक तक हो चुका है। उसके बाद का अभी जो आपको एक्स्ट्रा सेशन होंगे 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, उसमें कंटिन्यू करेंगे। और मॉर्निंग के सेशन में जो रेगुलर स्टूडेंट के साथ जो सिलेबस चल रहा है वो इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है। और अपने सब्जेक्ट में बात करो तो आप लोग ये थोड़ा स्टडी करके आए हुए हैं, और आई थिंक जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कोई प्रीवियस के टॉपिक आना या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सो जस्ट सिंपली ट्राई टू ग्रैपिंग अप टू द कंटिन्यू टॉपिक। हाँ, और बाकी के प्रीवियस टॉपिक तो आपको एक्स्ट्रा सेशन में कवर किए जाएंगे। ओके, चलो बाकी सभी का आंसर आया 33, ऑलमोस्ट सभी का। ठीक है, तो माइट बी ट्रू। चलो मैं खाली आंसर बता देता हूँ, देखो क्या क्या आंसर आएगा। मैं भी पेंट में जरा ड्रॉ कर लेता हूँ तो इट्स वेरी इजी। नोट्स है ABCD, ओ ABCDEF एंड जी। क्लियर, ओके। नाउ हाँ, इतना नोट्स है, स्टार्ट करते हैं विथ मिनिमम डिस्टेंस। सो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे है 4, और वो भी 2 एजिस है, तो उसमें कुछ लूप नहीं है, तो यू कैन कंसिडर दैट 2 एजिस, दिस वन, देन 5, 6। 6 में भी देखो 2 है, A to B एंड B to E दोनों कवर कर सकते हैं, लूप नहीं हो रहा है इसलिए। सो हियर 6, AB6। अब सिंपल देखो तो एक ही नोड बाकी है G, डायरेक्ट उन दोनों में G की जो भी एजिस है उसमें से मिनिमम ले लो, आंसर वहीं पे कंप्लीट। और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो नेक्स्ट आता है 7। तो 7 में देखो B to C, वो मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि लूप हो जाएगी। दूसरा 7 आ रहा है E to F, वो भी ऐड नहीं कर सकता, लूप हो जाएगी। फिर आते 8, तो 8 में 2 है, B to D, वो ऐड करोगे तो लूप हो जाएगी। एंड लास्ट वन रिमेनिंग, दैट्स दिस वन। तो अब यहाँ पे देखो कि सारे नोट्स कवर हो गए with minimum distance. Now just make the total, that is your answer. So answer is 33, correct. Clear? So this is the Kruskal method. And please just remember the method process. कि स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, प्रेम का आंसर क्रुस्कल में लिखाते हो और क्रुस्कल में पूछा हुआ आंसर प्रेम में लिख देते हो मोस्टली। हाँ, फाइनल जो आंसर आएगा टोटल कॉस्ट वो सेम आता है, बट जो प्रोसेस आती है स्टेप बाय स्टेप वो डिफरेंट हो जाती है। फिर अगर 7 मार्क्स का एग्जाम्पल होता है उसमें से खाली आपको 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि फाइनल आंसर सही होगा, पूरे स्टेप्स जो होंगे वो गलत होंगे। प्रेम पूछा होता है स्टूडेंट वहां पे क्रुस्कल का स्टेप्स लिख के आते हैं, क्रुस्कल पूछा होता है वहां पे प्रेम लिख के आता है। तो खास ये याद रखना कि क्रुस्कल में क्या होता है, स्टार्टिंग कोई भी नोड नहीं है विथ मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एज। प्रिम में स्टार्टिंग नोड आपको फोकस करना है, इट में बी स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इट में बी गिवन एनी नोड। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई स्टार्टिंग नोड कैपिटल डी से ही करना है, ऐसा दिया होगा। बट क्रूज कॉल में से कोई स्टार्टिंग नोड नहीं है, जस्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर? तो खास मतलब तो दोनों मेथड आती है बट स्वैपिंग करके नहीं आना। ओके, तो ये था ग्राफ में क्रूस्कल तक। देन नेक्स्ट आता है एमएसटी के बाद आएगा डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, दिस वन। ठीक है, बट डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिजिक्स्ट्रा एंड वर्सल एल्गोरिथम, एंड देन ग्राफ टॉपिक इज ग्राफ यूनिट इज कंप्लीट, एंड आफ्टर दैट हैशिंग एंड indexing file. Okay, so any query up to this one?
एनी डाउट? डी स्टूडेंट्स, अब आपके कैलेंडर में देखो तो लिंक आ गई होगी पूरे वीक की, या तो धीरे धीरे ऐड होती जाएगी, जैसे आज के 2:30 बजे की लिंक आ गई होगी, जो एक्स्ट्रा सेशन है 2:30 बजे के बाद। ठीक है, मैं पूरे वीक आपको बता दूं, अगर लिंक नहीं आ रही तो आप अपने सीसी से फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। इफ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। सॉरी। ओके, महक प्रेजेंट, वृंदा, जुजार, रवि, विश्वराज, वासु, नो वन, और मे बी नेटवर्क इश्यू। हेलो, हेमंत, ध्रुव, विश्वा, एनीवन? Guys, are you listening me or is there any Sir. issue? Okay. Uh, Dhruv. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Emma. Sir, please Dhruv, scroll it down. scroll down. Second. Right tab. Yeah, yeah. Okay, okay, okay. Yeah. Chat box. Okay. Yeah. Okay. Clear. Yes, sir. Vrunda. Mahek. And Juzar. Ravi. Okay. Now next one, Nirav. Vidhi. Brij. Aditya. Vidhi nothing. Okay. Vatsal. Ishan. Manthan. Jinal. Vasu. Ahmad. Anas. Rupali. Anjan. Ramesh. Suchi. Anand. Mitali. Bhavin. Bautik. Yes, sir. Raj. Persil. Fanny. Jay. Elvis. रिया, हर्षिल, संजय, राज, गौरव, अवनी, पूजन, वर्तिका, निसर्गी, माली, यश, केविन, केयूर, शुभम, शुभम गढ़िया, गोस्वामी, पुंज, देवेन, देवेन, नहिल, जय, अदिति,
Rushabh, Om, Om, they were Samir, Isita, Mah Mihir, Mansi, guys, wait a minute, just a minute. Yeah, uh, Shubham, present. Paras, Sunita, Sawan, and Asta, Zer, Divya, Rita, Parth. Okay, and last one, I think, what's your name? Forget the name. Sifa, I think. Are you there? Yeah, okay. Viraj. Any other D2D? No. So let's verify the option number. Yeah. Fanny, Mitali, Nahil. Is Fanny, then Mitali, Nahil. Now, any other students from this list? Vidhi, Krupali, Bhautik, Jai Parmar, Pujan, Subham, Goswami, Devan, uh, Nisa. I think, okay. D2D. Okay. So, any other students? Thank you, guys. You may leave. Okay. Yeah, welcome. Take care. Bye bye.